So we have already seen NCBI as a database, NCBI as a database, and through NCBI we have learned number of things like how to retrieve a data from these type of databases. We have learned how gene database is useful, then how genome database is useful, how protein database is useful, how taxonomical database is useful. So these are the major databases which are available for us for the data retrieval. Along with the NCBI, now we have some more other databases are all available to us that we will be covering today. So one of them is known as DDBJ, that is DNA Data Bank of Japan. This is the Asian what we can say region based database maintained by the Data Bank of Japan, and it is very much like a NCBI, but with having slight modifications, and that's what we have to cover today. So DDBJ uh, is actually collaborating with the NCBI as well as with the EMBL. Okay, so actually there are three types of major organizations available with us. One is NCBI maintained by US government, another is DDBJ maintained by Japan, and EMBL maintained by European Union. Okay, so there are three major uh, resources which are available. What is the advantage of using any of these three databases is that if you store any information in NCBI or DDBJ or in EMBL, after 24 hours of submission and approval, you will see your data has been published in all the three databases. Okay, so this is what is an advantage of these three organizations. Means you need not to submit your information to any all of the three databases separately. Just submit in any of the database and it will work. Okay, so this is the DDBJ DNA Data Bank of Japan. It provides you number of informations in the form of activities about us, supercomputing facilities, statistics and all. But this is what is the main concern of our, that is the services. We click onto this. So once you reach to this part, similar to NCBI, you will see some data retrieval systems. Okay, it is little bit complicated as compared to NCBI. Hence, mostly people used to prefer for the analysis the NCBI. But okay, I will also teach you this part. Again, in DDBJ, you have AGD. It's a controlled access database. Okay. Again, it will give you list of databases. If you click onto this, it will give a list of databases, and here you can actually submit and share your database whenever you are going for the sequencing. Another is the BLAST program. We have already seen this BLAST program. Similar the kind of software and system is there in a DDBJ. So you can use either NCBI or in a DDBJ you can use BLAST. Then this is ARSA, that is a data retrieval system, and from here you can retrieve any sequence as per your convenience. So ARSA is a data retrieval system. It is not as user friendly as it is in an NCBI. Keep in mind. But if you know, then you can very easily utilize this. For example, you can search it by accession number. If you want to search by some accession number, you can search like this, and they will give you information about that. It will directly give you that information. Right. There is some problem. This net killer.
Then screen दिसत आहे का माझी? There was some internet issue. Okay, so we'll go to the service part where we can search the sequence. Here is an ARSA. In ARSA, you can search any sequence. In ARSA, you need to put your accession number, whatever accession number you are having, just put it here like this and go for the search. And they will start giving you the information as you can see here that AB486 is coding for Bacillus subtilis gene for 16S rRNA. You can again download it in a various format as per your requirement, maybe in a flat file XML or in a FASTA format. If you wanted to go in detail, you can select that and then you can view the selected entry. After viewing, you can see the exact sequence of that entry, whatever the entry you are interested in. So just like NCBI, you can use this DDBJ also. Then another very important database is KEGG, that is Kyoto Encyclopedia of Genes and Genome. You will find this KEGG, that is Kyoto Encyclopedia of Genes and Genome, much more user friendly than DDBJ and even sometimes as compared to NCBI. And it gives lots of facilities for a researcher to download number of informations. Again, I will showcase it for you. You can see here there is a KEGG gene set is already available, genome is already available. Likewise, you can also search by organism. Now this is a very unique feature available into this. For example, if you want to search your organism genome and their genomes and genome based genes and proteins, you first click onto this one. This link will shift you to the list of genomes for the organisms or the list of the organism for which the codes have been given. As you can see, these are the codes. These are codes given for particular organism. You just search as per your need, whatever the organism you are interested in. Just go for the control F and write it down and search for your interested genus or species. So they will help you to find out that particular gene. Okay. For example, I am interested in Mycobacterium. So now I can see all the Mycobacteriums available here. And after that you can select as per your need which organism you are interested in. For example, I am interested in Mycobacterium ulcerans. What is the code? MUL is the code. Just click onto this. So while after clicking to this MUL code, they will directly shift you to the organism specific information. Now this is a very important part. Here there are so many modules are there. Right now we are in a genome info mode of Mycobacterium ulcerans, and this is this database number. This is its code. This is genus name, as you know, and as you can see here, there is a chromosome, that is a circular normal chromosome. Along with that there is a plasmid, means it contains two genomes, as you can see here, and they have informed you about both, that there are total two genomes are there that you can use for your analysis. Now you can start searching here for the genome. Just click on a number 1 and say go. You will find
the list of all the genes available. Okay, these are the listings of the genes available and what they exactly they are coding. You can click on one of them and you can get the gene bank information out of it. For example, I am clicking on the first one. After clicking to this, they will give you a very detailed information about that gene. As you can see here, it is giving you the name of the protein, what it is coding. Then they are also giving you in which metabolic pathways that particular protein is coding for the gene which from which they are getting encoded. So these are all the what you can say uh, pathways in which they are encoded. Along with that, similar to the NCBI, they will give you amino acid sequence and they will give you a gene sequence of it. Okay, just click onto this and it will come into the FASTA format. These blue links. This is the actual position of the gene in a genome. As you can see, if you wanted to go into the genome and to find out the exact position, just click onto this genome map. After clicking this genome map, they will shift it to the genome map position. Here you can see all the genes one by one arranged on a genome. These are all the names of the genome. Okay, so you can see the neighborhood actually, neighborhood of the gene. What are the genes available? Click on that and you will get the names. There are some colors are also being donated onto this genome. These colors indicates their specialized functions. So what type of gene and what they are functioning, and based on that they have been colored. So to understand that, you can click onto this ORF color. So as per their metabolic function, they have been classified. Okay, so this is a very important factor because by which you will be able to directly target your gene of interest as per the metabolism. Okay, otherwise it is very tough for us to find out how many types of proteins are there involved in a nucleotide metabolism, how many types are there involved in some other kind of secondary metabolism, something like that. So you can, from this you can very easily analyze them and you can very easily select them. Okay, for example, this one is related to the genetic information, yellow one is related with the environmental and information processing. Likewise, you can very easily classify them. Okay, if you wanted to know more in detail about it, you can click on a list. After clicking to the list, they will give you a very detailed information about what are the names of the gene arranged on the genome of the particular organism, Mycobacterium ulcerans, and one by one they have been enlisted. You can make a clear selection so that everybody will get withdrawn, and then one by one you can select the genes which are of your interest just by clicking these boxes. After clicking these boxes, you have selected only few of them as your choice proteins or genes. Then you can go to the selection operation. Here you have get FASTA format amino acid sequence. Just click onto this. We'll get a DNA and protein. There are so many other options are also there. Right now, because we have not learned this concept, I am not going into this part. Okay, but this is what we have learned up till now. That is what I am showing it to you. So I have selected these 4 genes. For that I want the protein. Just go for the execute. What will happen now? You will be able to isolate these 4 proteins out of the genome. Okay, out of the database, not genome, out of the database. Okay. Then if you want a DNA sequence, again execute. This will give you a DNA sequence. So by simply clicking and by selecting, you will be able to isolate your desired genes or the protein sequences. Now this is the advantage of KGG. In NCBI, you will not see such a function. Okay, you will not gonna see such a function. But in KGG, very easily you can select your gene of interest and you can very easily download it. Okay, so we'll take again a glance of it. What we have done till now, we have gone to the KGG. In a KGG, we have gone to the organism section. In our organism section, I have searched by Control F option, the Mycobacterium.
Okay, Mycobacterium is coming. So Mycobacterium, then I have selected one of the Mycobacterium species and I have clicked onto this code of that particular organism, for example this one, and once I have reached to that part, I am getting the genome info. Through that genome info, I have clicked one number and I have entered into the information section. After going into the information section, I can see the name of the genes which are available. By clicking on one of the gene, I can see the whole information about that gene, where they codes, what type of protein they code, what type of nucleotide they encode, everything you can very easily see. Then I have clicked on to this genome map section. This genome map section will shift you to the genomic database information, and this genomic database information will give you a neighborhood of the genes. One by one you can easily check those in the form of the map, or if you don't want to go by map, you can go by the listing option also. Here is the listing option. You can click on the listing option. You can see all the genes one by one. Okay. Then if you want to select some of them, you can select very easily, and then you can go for the execute, get FASTA format amino acid sequence, and you can download either protein or in DNA by using execute button. So this is what is a KEDG, a very important database along with the NCBI. Okay, and very user friendly because it gives you lots of information quickly and in a very detailed manner. I like this database very much because it is a very fantastic one, and having a huge database information of number of organisms, and at a very quick time it gives you the outputs. So all you can use this KEDG database in future if you want. Okay, then we'll go back. Then there are some other databases are also there. I will not touch this part right now because we have not seen that part in detail. Hence, we'll come out of this database. Okay. Then, after going to this, we'll go to the EMBL database, also known as EBI database. We'll go to the Google so that it will be very easy. Many times, search gets problematic. So we will go to the EMBL EBI. Okay, EMBL EBI. This is again another database just like NCBI. Okay, again I will say this is not that much user friendly as NCBI is there, but still you can use this one even if you wanted to go for. Again here you can see the list of the databases or the choices which are available for us for the search, like gene expression, protein nucleotide sequences and all. Okay, I'm for example right now I'm selecting a nucleotide sequence. You can put a name of the any particular gene or protein and you can search it out here. The software will start giving you the results. So now they have started giving you the results because we have given a very raw information. I just want given them aldolase. So they started giving me all the information. Here you can see mRNA sequence is there, complete coding sequence is there, and all. Just similar to your NCBI, just click on one of the accession number and you will be launched into the more detailed information of this particular gene or a protein. As you can see here. So just click onto these things and you will get the FASTA format and of the your sequences and publications and sequence variation if a sequence version is there if you wanted to go for it. So just like NCBI, you can very easily use these type of data. Now our today's main aim is to find out
a very important aspect out of these databases is that we have seen that we have NCBI available with us, we have DDBJ available with us, we have EMBL available with us. Now question comes that from where these databases are getting information or the data. There must be somebody who is submitting your information. Okay, so I wanted to inform you that all the data which is coming into the databases are coming from the authors and the libraries and the laboratories. Okay, so the submitter who is submitting this information to these databases are the direct authors or the universities or the laboratories and all who are giving the information. So, for example, I will let you know. For example, this is the one of the code KB486008. This is of mine. I have submitted this sequence information to the NCBI. Okay. Now you will ask me, sir, how to submit a sequence to this NCBI? Okay, how to submit a sequence information to the NCBI. So this much of information has been submitted by me. So I will showcase you how to submit this kind of information to the NCBI. So first thing, what you do? What is the layout of the submission portal? That we need to understand. Okay. First, we'll check it out. What is the layout? What are the things required to us before submitting it to the NCBI? So I will explain it to you. What are the things required? Okay. So one by one, I will explain it. First thing which is required, that how to submit sequence. Okay, this is our today's main aim. We have learned three databases: NCBI, EMBL, and DDBJ, and we have seen, okay, there are so many databases are available and they are giving lots of data to you. Now, question comes, how they are getting that information. We have seen in number of lectures that there are GeneMark softwares are available. There is a BLAST software is available, which is giving you the function related information to your gene or protein. And once you get that function of your gene or a protein, you need to submit it into the NCBI, DDBJ, and EMBL. So before going into the how to submit a sequence, we should know what are the steps and what are the preparations we should have before going into the submission. So how it will start? How will reach to the sequence submission step? The first step which will start will always your cell. Okay, you'll always start with your cell, and once you start with your cell, you'll try to isolate the genome. Okay, or you will start with the proteome. Okay, these are the two major parts from which you will start. Then from a cell you are getting genome or a proteome. Then cell will also give you another resource, that is a gene. Okay, along with that, cell also will give you mRNA or rRNA or tRNA. Okay, so if you see in the form of the molecules, you are having again DNA, RNA, and proteins. So we have three major molecules available for us for the submission, available in the form of the genome or the proteome or the gene, mRNA, rRNA, or tRNA. In addition, you will also see many times the sequence of whole genome sequence or draft genome. Okay, so you will say, sir, what is the difference between whole genome sequence and draft genome? So a cell is having its own complete genome, which is a finalized or functionalized genome. Okay, but before reaching to this part, we'll get a whole genome sequence or a draft genome sequence. Okay, in the form of context, in the form of
contigs or contigs assembly. So what happens many times, labs are labs are going for contigs sequence. Okay, contig sequencing. Now what is this contig sequencing? Contig sequencing tells you that it may be complete, genome or maybe not. ठीक है, it may be a complete genome or maybe not. तो आपके पास पूरा जीनोम हो सकता है in the form of contigs, या फिर हो सकता है कि कॉन्टिक्स पूरे तरीके से सीक्वेंस नहीं हुए हैं. ठीक है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है ड्राफ्ट जीनोम. तो आपके पास ये भी हो सकता है. ठीक है, तो आप क्या क्या सबमिट कर सकते हैं एनसीबीआई को, ये थोड़ा देख लीजिए. व्हाट यू कैन सबमिट टू द एनसीबीआई और डीडीबीजे और ईएमडीएल. आप क्या क्या सबमिट कर सकते हैं ये आप कर सकते हैं. वो है सबसे पहली बात, what you can submit gene, then you can submit protein, then you can submit all types of RNA sequences, then you can submit a genome, then you can submit draft genome, okay. So these are the things you can very easily submit. Along with it you can submit expression data set. ठीक है, एक्सप्रेशन डेटा सेट्स. मैं इसको अभी नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको क्योंकि ये अभी तक पढ़ाया नहीं है मैंने आपको. Hence I am not going into detail about it, expression data sets and all. Okay, बट हाँ अल्टीमेटली वो प्रोटीन में आ जाता है, इसलिए हम प्रोटीन एक्सप्रेशन डेटा सेट भी उसको कह सकते हैं. या फिर आप उसको सीडीएनए भी कह सकते हैं. ठीक है, या फिर आप उसको एक्सप्रेशन डेटा सेट्स भी कह सकते हैं. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप एनसीबीआई में पुटअप कर सकते हैं. अब एक चीज ध्यान में रखिए, these all data sets are different. Okay, they are all different in their functions, their information. Hence, we need to take care of them individually. Okay. Now, if I consider a gene, if you wanted to submit a gene into a NCBI, okay, it looks very easy. Okay, I can submit very easily. But again, gene gives different products, right? So what are the three products of the gene? Can anybody tell me? What are the three different products of the gene? Okay, भूल गए शायद. राइट, तो अगर आपका जीन को सबमिट हमको करना है एनसीबीआई में, तो हमको सबसे पहले ये समझ लेना पड़ेगा कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट दिस जीन इज गिविंग. अकॉर्डिंगली वी नीड टू सिलेक्ट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द प्रोग्राम. ओके, क्योंकि हर एक प्रोग्राम एक पर्टिकुलर जीन टाइप को के लिए स्पेसिफिक है. ठीक है, यू कैन नॉट सबमिट अ जीन belongs to mRNA into rRNA program and rRNA into mRNA program. So first we need to select. आपको उसको select करना पड़ता है properly. After selecting, you will make a decision. Okay, I will submit it, and then you will start submitting. Then what we have seen this much of information. That's what we will gonna cover. Then what information NCBI will ask you? First, they will ask you, do you know from which organism it has been isolated? You should know from which organism you have isolated it. Okay. Then you can also submit a 16S rRNA gene sequence, which is a useful for identification of bacteria. And if you are submitting 16S rRNA sequences, then you should know for which organism it is belongs to. Then you have to give your author's name, then a particular article name, then from which organization you have submitted, and this is a feature table. मैंने आपको already समझाया था feature table बहुत important है. So we have to submit this feature table also. Okay, so now we'll start submitting the
one of the sequence. Will not submit actually. We'll just showcase you how to go for it. So if you go with the NCBI, in NCBI, here is that system is available. That is submit, deposit data or manuscript into NCBI. Click on it. After clicking this, there are some options available. As you can see here, submit assembled ribosomal RNA, submit mRNA, and submit assembled eukaryotic prokaryotic whole genome sequence or complete sequence. Okay. So here you have to make the decision what you wanted to go for. So right now in my hand, for example, I am having a 16S rRNA sequence or a ribosomal RNA gene sequence. So I will go for with this one. Okay. अगर आपके पास में कोई mRNA based सीक्वेंस है तो आप इसको लेंगे. ठीक है, हम दोनों सीखने की कोशिश करेंगे. Submit. Click on a submit. Once you launch here, they will ask you to log in. Okay, they will ask you to log in. Go on a login section. Log in again with the Google account. Select your login account. This is the procedure, huh? Just keep in mind. So now you have been signed in. As you can see, you have been signed in by scivisystem@gmail.com. And once you have been signed in, then this portal comes. New submission. Okay, click on to new submission. After clicking the new submission, you are ready to launch. Means you are ready to go. So one by one they will ask you some questions and you need to answer. Okay. तो ये आंसर करने के पहले आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा. ठीक है, आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा. तैयारी क्या करनी है मैं आपको समझा देता हूँ. What you should know और कैसे आप उसको करेंगे ये थोड़ा सा समझ लीजिए. फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड हैव योर सीक्वेंस, क्योंकि आप 60 ने सारा नहीं सबमिट कर रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आप जीन सीक्वेंस सबमिट कर रहे हैं, तो आपके पास में एक सीक्वेंस होना चाहिए. मैं एक सीक्वेंस ले रहा हूं, ये वाला मान के चलते ये एक अननोन सीक्वेंस है आपके पास. ठीक है, दिस इज योर अननोन सीक्वेंस अवेलेबल इन योर हैंड. So can anybody tell me what is my step, what should be my step? मेरी सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए ये अननोन सीक्वेंस को नोन करने के लिए? What I will do? Can anybody? क्या करना पड़ेगा मुझे, कौन से सॉफ्टवेयर में एनालिसिस करना पड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एनालिसिस करना पड़ेगा. हाँ, कहाँ करेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर में पुट करो इसको? कौन से सॉफ्टवेयर में डालना चाहिए बताइए. सर टी ब्लास्ट 10. ब्लास्ट 10, राइट. टी ब्लास्ट 10 नहीं करेंगे, हम ब्लास्ट 10 करेंगे. सबसे पहले तो हमको सीक्वेंस का पता करना है. ओके सर. है ना. ओके तो सर. सबसे पहले हमको सीक्वेंस का पता करना है कि वो है कौन. ठीक है, तो मैंने इस सीक्वेंस को ब्लास्ट किया, नॉर्मल ब्लास्ट. कोई ऑर्गेनिज्म लेंगे क्या? नो सर. नो सर.
कोई सीक्वेंस हम ऑर्गेनिज्म यहाँ पे नहीं देंगे, तो इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, अगर आपके इसमें है तो। हाईली लेंगे या समवॉट? हाईली। वेरी गुड, एंड ब्लास्ट इट। ऐसे फटाफट आंसर दिया तो अच्छा लगता है, यानी इसका मतलब है कि मैं सही डायरेक्शन में पढ़ा रहा हूँ। सो ब्लास्ट करेंगे हम। ये स्टेप्स लिख के रखो आपके पास में, ठीक है, जैसे जैसे समय मिल रहा है। अगर कुछ छूट जाता है तो रिकॉर्डिंग होती है, उससे फिर से उसको रिकॉल कर लीजिएगा। सो इससे क्या आउटपुट आएगा, मुझे ब्लास्ट टाइम से क्या पता चलेगा? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस किससे कंपेयर है? हाँ, किससे, मतलब हाँ किससे मैच हो रहा है ना? और क्या पता चलेगा? जीनोम लोकेशन, जीनोम ऑर्गेनिज्म नेम। लोकेशन। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पता चलेगा? जीन का नाम पता चलेगा हमको, है ना? यस सर। तो मुझे बताइए, जो अननोन सीक्वेंस हमने यहां से उठाया अभी, ये वाला, ये किससे मैच कर रहा है? किससे मैच कर रहा है? 16S RNA। 16S RNA बैसिलस सबटिलिस से मैच कर रहा है। इसका क्या मतलब कि ये जो सीक्वेंस है ये इसी ऑर्गेनिज्म का है। अब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर कि आप इसी ऑर्गेनिज्म का है? क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट करके नहीं रखा है, राइट? यस मैंने सर। डाटाबेस को बोला कि आप सर्च करिए, डाटाबेस ने उसको परफेक्ट सर्च करके दिखाया कि बैसिलस सबटिलिस से हो रहा है। पर अगर मैं यहाँ कोई ऑर्गेनिज्म डालता तो शायद उससे मैच नहीं हो पाता। तो इसलिए आपको जब भी सीक्वेंस सबमिशन करना है, कोई भी ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक सर्च नहीं करना, ठीक है, जनरल सर्च करना पड़ेगा। याद रखिए प्रोसेस। फिर आपको ये पता चल गया बैसिलस सबटिलिस जीन फॉर 16S rRNA है। अब मुझे इस सीक्वेंस का प्रोटीन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अब मुझे इस सीक्वेंस का प्रोटीन चाहिए तो मैं क्या करूंगा? कौन सा ब्लास्ट यूज करेंगे? ब्लास्टेक्स। ब्लास्टेक्स। पक्का? कौन सा यूज करूं? सर टी ब्लास्टेक्स। टी ब्लास्ट एक्स यूज करेंगे कि ब्लास्ट एक्स यूज करेंगे? टी ब्लास्ट एक्स। सर टी ब्लास्टेक्स। टी ब्लास्ट एक्स क्यों यूज करेंगे? सर ब्लास्ट ब्लास्टेक्स एक्स। ब्लास्ट एक्स यूज कर सकते हैं ना? ब्लास्टेक्स। यस सर पर ब्लास्टेक्स। पर आप ब्लास्ट एक्स भी यूज नहीं कर सकते। अब इसका रीजन बताइए क्यों? आपके सामने मैंने आंसर रखा है। जीन किसका है? बैसिलस सबटिलिस। हाँ, और क्या कोड करता है? बैसिलस। कोड क्या कर रहा है? सर हमें RRNA। एग्जाम सर आर करनी पड़ेगी। हाँ, सर एक्चुअली RRNA कोई भी प्रोटीन डिस्क्राइब नहीं करता, इसलिए प्रोटीन सीक्वेंस सर्च ही नहीं कर सकते। हाँ समझा क्या? हाँ। समझा? यस सर। इसलिए अपन गधे जैसे काम नहीं करना कभी भी, ठीक है? इसलिए मैं आपको बोला सबसे पहले क्या, कौन सा ब्लास्ट करना है? कौन सा ब्लास्ट करना अगर अननोन सीक्वेंस दिया है तो? एन हाँ, ब्लास्ट एन। ब्लास्ट 10 करना आपने हमेशा। उसके बाद ये देख लेना कि कौन सा जीन है, राइट, और उसका टाइप क्या है। अगर वो mRNA कोडिंग है, ठीक है, तो आप उसका ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अब ये 16S rRNA जीन है, राइट? तो
तो मैं जब एनसीबीआई में उसको सबमिट करने की कोशिश करूंगा, तो इन 3 सेटअप में से कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? सर फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, समझा क्या आपको? फर्स्ट वन। हाँ, और अगर मेरा जीन एमआरएनए कोडिंग है तो कौन सा यूज करूंगा? सेकेंड। और अगर मेरे पास Second होल one. जीनोम सीक्वेंस है तो मैं कौन सा यूज करूंगा? थर्ड। थर्ड वन। समझा आपको पॉइंट? समझ रहा है क्या? तो सबमिट करना Yes, दिखता sir. उतना आसान है नहीं, पहले आपको पूरी तैयारी रखनी पड़ती है, तभी आप एनसीबीआई में सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सबमिटिंग प्रोग्राम है ये आपको ज्यादा हेल्प नहीं करेगा एनालिसिस में, आपने पूरा पहले एनालिसिस कर लेना है, उसके बाद ही वो आपको हेल्प करेगा। पॉइंट आपको समझ रहा है ये पॉइंट? तो आपके पास अब एक अननोन सीक्वेंस था, सबसे पहले आपने उसका एनालिसिस किया, उससे हमको ये पता चल गया कि ये जो सीक्वेंस है 16S RRNA का है, 101%। ठीक है, ये एक प्रोसीजर हो गई। अब दूसरी प्रोसीजर देखते हैं। अगर मेरे पास कोई प्रोटीन सीक्वेंस है, ठीक है, प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस है, हमारा स्टैंडर्ड ले लेते हैं, जैसे ये दिख रहा है एल्डोलेज। अब अल्डोलेज ए में यहां उन्होंने एक चीज बोली है, क्या चाहिए? सबमिट एमआरएनए या फिर जीनोमिक डीएनए या ऑर्गेनेली या एनसीआरएनए या प्लाज्मिड। ठीक है, यहां पे उन्होंने क्या बोला? सबमिट एमआरएनए। इन्होंने सबमिट जीन नहीं बोला, याद है? समझ रहे हैं आपको? यहां पे कहीं भी उन्होंने सबमिट जीन ऐसा नहीं बोला है। आपको क्या सबमिट करना है? सबमिट एमआरएनए। तो अगर मैं ये अल्डोलेज जीन सबमिट करने की कोशिश करता हूं तो ऐसा जीन यहां सबमिट वहां पे नहीं हो रहा है, मुझे एमआरएनए सबमिट करना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मुझे कौन सा सीक्वेंस लेना पड़ेगा? एमआरएनए। और वो मुझे कहां मिलेगा? नीचे। आपको यहां पे ढूंढना है। मिला क्या किसी को? कौन सा क्लिक करूं? सर फर्स्ट वन। फर्स्ट वन, ये वाला, इसको क्लिक करेंगे। सी, हमको एमआरएनए सीक्वेंस ही सबमिट कर सकते हैं वहां पे, अदरवाइज वो उसको नहीं ले पाएगा। सो ये है आपका एमआरएनए सीक्वेंस, यही वहां सबमिट हो पाएगा, जीन सीक्वेंस वहां सबमिट नहीं हो पाएगा। ये भी एक चीज हमको याद रखनी है। तो अब अगर समझ लो ये अननोन सीक्वेंस है आपके पास में, तो फिर से कौन से स्टेप हो गए आपके लिए? इसको ब्लास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ब्लास्ट करके कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जीनोम सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या? नो सर। नो, हम नहीं करेंगे। No, sir. ये हाईली ही रखेंगे एंड अगेन इसको क्या करेंगे? ब्लास्ट। ब्लास्ट हमने कर दिया, किससे मैच कर रहा है? होमोसैपियन के अल्डोलेज ए से, ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट 4 का एमआरएनए है ये सीक्वेंस। ठीक है, अब अगर मुझे इसका ओपन रीडिंग फ्रेम चाहिए, क्या चाहिए? ओपन रीडिंग फ्रेम या कोडिंग सीक्वेंस चाहिए, तो मैं क्या करूं? कौन सा ब्लास्ट लगाओ? ब्लास्टेक्स। Blast10. ब्लास्ट 10 कि ब्लास्टेक्स? ब्लास्टेक्स। ब्लास्टेक्स।
Yes, we'll use BlastX. अब ये कहां से निकाला था हमने? कहां से निकाला था? कौन से जीन से निकाला था? सॉरी, ऑर्गेनिज्म से निकाला है हमने। होमोसैपियन से निकाला, राइट? होमोसैपियन से निकाला हुआ है ना, राइट? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. पर आपको थोड़ी पता चलेगा, है ना? यहां से समझेगा आपको कि अरे ये होमोसैपियन से निकाला हुआ है, राइट? समझ रहा है ना? ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब क्या है? ब्लास्ट टेक्स्ट करने के बाद अगर मुझे उसको ट्रांसलेट करना है तो क्या लेना पड़ेगा? क्या ढूंढना पड़ेगा मुझे? बताओ जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाना है अभी। क्या पता करना पड़ेगा ब्लास्ट टेक्स्ट करने के पहले? ये जीन की लोकेशन पता करनी पड़ेगी ना। जीन की लोकेशन कहाँ है पता चल रही है कि नहीं? ये सिर्फ इतना ही पता है, अल्डोलेज ए, यानी होमोसैपियन का अल्डोलेज ए जीन कौन से लोकेशन पे है क्रोमोसोम के, ये पता करना पड़ेगा। क्या स्टेप्स है बताए? क्या स्टेप्स लूं मैं? बोलिए, कहां जाऊं? कोई बता पाएगा? कहां जाएंगे? अरे भूल गए क्या? हमें अभी तो पढ़ा था 2 दिन पहले। सर नाम डालेंगे ऑर्गेनिज्म का वहाँ नाम पे। डालेंगे। नाम डालेंगे, कहां डालूं? कौन से डेटाबेस में? जीन 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 में डालूं? पक्का? किसका नाम डालूं बताइए, ऑर्गेनिज्म का या जीन का? ऑर्गेनिज्म का नाम डालूं या जीन का नाम डालूं? ये है ना नाम, ALDOA, सर जीन का। जीन का नाम डालेंगे ना, ALDOA है ना, ALDOA ऑफ होमोसैपियंस। Homo sapien. आ गया, क्लिक करते हैं। अब कहां है लोकेशन? 16p11.2, हाँ, तो कौन सा क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम नंबर 16। हाँ, 16। अब क्रोमोसोम नंबर 16 ऑफ होमोसैपियन कौन सा जेनेटिक कोड फॉलो करता है, ट्रांसक्रिप्शन टेबल फॉलो करता है, वो बताने के लिए कहां जाऊं? सर वो वहाँ क्लिक So करना, taxonomy. हाँ टैक्सोनॉमी में जाना पड़ेगा, यानी इसको क्लिक करना पड़ेगा। अब पता चल गया, स्टैंडर्ड 1। स्टैंडर्ड 1, तो ये बराबर है, स्टैंडर्ड 1 इज करेक्ट, है ना? तो चेंज करने की जरूरत नहीं है ना? नहीं सर। नहीं। और यहाँ पे नहीं ऑर्गेनिज्म चेंज करना पड़ेगा क्या? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म डालू कि नहीं डालू? डालना पड़ेगा सर। हाँ डालना Homo पड़ेगा। sapiens. Homo sapiens. होमोसैपियंस, होमोसैपियंस। देखो पहले वाले में नहीं डालना पड़ रहा था, बस सेकंड वाले में डालना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमको स्पेसिफिक चाहिए, राइट? तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, बहुत छोटी छोटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अगर मैं यहां नहीं रहूंगा तो आप वहीं पे रह जाओगे, 1 घंटा क्या 2 घंटे वहीं पे बैठे रहोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना चाहिए।
इसलिए पिन पॉइंट सारी चीजें याद रखो। हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लास्ट एक्स से क्या कर रहे हैं, क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पता करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रोटीन। प्रोटीन, हाँ, यानी उसका कोडिंग सीक्वेंस दिख रहा है आपको। कोडिंग सीक्वेंस लिख के दिया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे उसने लिख के दिया है। 286 से कहां खत्म हुआ? 1401। लिख के रखो आपके पास में एक, कोई तो भी एक। 286 से 1401 तक हुआ। कौन सी रीडिंग फ्रेम है? +1 रीडिंग फ्रेम है, राइट। फिर नीचे वाला देखो, नीचे वाला दिख रहा है आपको? ये कौन सा फॉर्म है देखो, कौन सा फॉर्म है? आइसोफॉर्म 2, आइसोफॉर्म 2। और ये कौन है नीचे में देखो? आइसोफॉर्म 1। अब तो ये इंटरेस्टिंग हो गया। और कौन सा अच्छा है? सर आइसोफॉर्म 1। यस, आइसोफॉर्म 1। और वो कहां से शुरू हो रहा है? मिथ्योनिन से। 310 से शुरू हो रहा है, राइट। हाँ हाँ। और 1389 पे खत्म हो रहा है। तो मैं कौन सा लू, अब कौन सा सही है? 286 इज करेक्ट और 310 इज करेक्ट। और नीचे आते हैं, नीचे भी देखो 310 से ही आ रहा है और 1401 तक गया, दिख रहा है आपको? 1401 तक गया। फिर और नीचे आते हैं तो अब मुझे पार्शियल आना शुरू हो गया। देखो 313 से 1401, और मुझे मेजोरिटी ऑफ टाइम 1401 तक जाते हुए प्रोटीन दिख रहे हैं, है ना। देखो यहाँ पे भी 1401 तक दिखा, यहाँ पे भी 310 से 1401 तक गया है। तो क्या मुझे 1401 आखिरी लेना चाहिए? Yes, sir. यस सर। हाँ देखो, अब आपको समझ रहा है क्या जो ब्लास्ट प्रोग्राम हमने इस्तेमाल किया वो कितना यूजफुल है। जो फर्स्ट होता है जरूरी नहीं वो सही है, इसमें आपको ये सारी चीजें देखनी है, ठीक है। तो 310 से लेके 1401 तक लेंगे। यस, करेक्ट है आपका। 310 से 1401 तक लेंगे क्योंकि मेजोरिटी दिखा रहा है। कुछ कुछ इसमें पार्शियल हो गया है वो। और आगे थोड़ा नीचे देख के देखते कोई और तो नहीं बढ़ा रहा है, नहीं बढ़ा रहा है। देखो यहाँ पे गैप्स आ रही है ना धीरे धीरे। ये ये अल्डोलेस सी से मैच कर रहा है, इसलिए अलग हो गया। अल्डोलेस ए है ना हमारा, समझ रहे हैं क्या? देखो हमारा अल्डोलेस ये यहाँ तक है, उसके नीचे अल्डोलेस सी से मैच कर रहा है, यानी अब ये सही नहीं है, इसके आगे नहीं जाना है। तो क्या समझा हम? हमको दो चीजें समझी। हमारे पास में अगर 16s आरआरएनए है तो उसका ब्लास्ट एक्स नहीं करना है। और अगर हमारे पास एमआरएनए है यानी प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंस वाला है, तो सबसे पहले तो उसका नाम पता कर लो कि कौन से जीन से वो मैच कर रहा है। और फिर उसके बाद ये पता करो कि उसका कोडिंग सीक्वेंस क्या है, यानी उसका ओपन रीडिंग फ्रेम कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है। देखो तो आपका एमआरएनए यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म होता है, और एक्चुअल कोडिंग रीजन सिर्फ इतना ही है, ठीक है, इतना ही है। और उसमें भी वेरिएंट्स है। देखो ये यहां से शुरू हो रहे हैं छोटे छोटे छोटे, और ये जो पहला वाला है उसका और आगे जा रहा है। इसलिए देखो ये आइसोफॉर्म 2 है और ये आइसोफॉर्म 1 है। अब आप क्या रिपोर्ट करना चाहते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप चाहो तो आइसोफॉर्म 2 भी रिपोर्ट कर सकते हो। आइसोफॉर्म 2 में क्या एडिशन है, देखो थोड़ा सा इसमें और इसमें क्या एडिशन है। ये 310 से शुरू हो रहा है और ये कहां से शुरू हो रहा है? 286 से हो रहा है। यानी कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स है जो उसमें ऐड हो गए हैं, है ना। इसलिए ये कौन सा फॉर्म है? आइसोफॉर्म 2। और ये है आइसोफॉर्म 1। इसके लिए इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट। कौन है ये? ट्रांसक्रिप्ट वेरिएंट है, इसलिए इसको आइसोफॉर्म्स भी
कहा जाता है। इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है सबमिशन करते वक्त, दिखता उतना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। आपको बहुत सारे बाद में कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, अभी हम देखेंगे सबमिशन के वक्त कितना मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम आ गए दो चीजों पे, एनसीबीआई का एक mRNA सीक्वेंस और एनसीबीआई का एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, ठीक है। चलो, तो सबसे पहली चीज जो हमको करनी है वो 16S RNA का करते सबमिशन। हमको उसकी इंफॉर्मेशन पूरी है हमारे पास में अवेलेबल है ना, तो इसको सबमिट की तरफ चलते हैं। तो जैसे मैं उसको बोल रहा हूँ सबमिट, तो वो बोलता है अलाउ कर रहे हैं हमको, न्यू सबमिशन में जाएंगे। तो बोलता है यू हैव एटलीस्ट वन अनफर्निश्ड सबमिशन बिलो, आर यू श्योर वांट टू क्रिएट अ न्यू सेपरेट सबमिशन, तो उसको बोलना हाँ यस स्टार्ट। कभी कभी क्या होता है आपके पुराने वाले सबमिशंस को पूछता है कि अरे आपके कुछ बचे हुए हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो यहां से आपका सबमिशन शुरू हो रहा है, कौन से सीक्वेंस के लिए, ये वाला सीक्वेंस जो हमारे पास है अभी, ये वाला सीक्वेंस है ना हमारे पास, ये अननोन सीक्वेंस, इसको सबमिट करना है आपको। स्टार्ट सबमिटिंग। सबसे पहली बात है कौन से टाइप का सीक्वेंस है हमारे पास में, सार्स कोविड है, कॉक्स है या आरआरएनए है, बताइए। RRNA। हाँ यस। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ वो आपको और पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ आरआरएनए और आरआरएनए इंटर ट्रांसक्राइब सीक्वेंस इज देयर, कौन से टाइप का आरआरएनए है आपके पास में पूछ रहा है, प्रोकैरियोटिक आरआरएनए है कि यूकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली आरआरएनए, कौन सा है हमारे पास में, कोई बता सकता है कौन से ऑर्गेनिज्म से मैच किया था हमारा सीक्वेंस, यूकैरियोटिक न्यूक्लियर है सर? नहीं नहीं है मैम, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया से मैच हुआ था ना, अच्छा, पर होमोसेपियन से लिया था ना सर? नहीं नहीं, मैच करके। अच्छा, वो प्रोटीन कोडिंग एमआरएनए है। हम जो पहला वाला लिए थे ना आरआरएनए, हमारे पास दो टाइप थे, एक ये था जो अननोन था, और एक वो है जो अभी एनसीबीआई से उठाया था हमने। हाँ तो सर कंफ्यूजन हो गया सर। कंफ्यूजन हो गया, प्रोकैरियोटिक। हाँ सर, दो प्रोकैरियोटिक, एक साथ दिखाया था आपने तो हाँ कंफ्यूजन हो गया। इसीलिए तो कंफ्यूजन इसलिए तो खड़ा करना है ना, क्योंकि अगर मैं कंफ्यूजन नहीं करूंगा तो आपका ब्रेन सीधा नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं नहीं रहूंगा हर बार, आप यहाँ लटक जाएंगे, फिर क्या करना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि हमारे पास सीक्वेंस क्या है, ये कौन सा सीक्वेंस है, किसका सीक्वेंस है, ये आरआरएनए सीक्वेंस, कौन से बैक्टीरिया से मैच किया था, Bacillus subtilis। बैसिलस सबटिलिस। हाँ बैसिलस सबटिलिस से किया। तो बैसिलस सबटिलिस कौन है, प्रोकैरियोट। हाँ समझ गया। तो अब यहाँ पे आएंगे, इसलिए ये क्या बोल रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ आरआरएनए और आरआरएनए आईटीएस इज देयर, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, बराबर है, प्रोकैरियोटिक। हाँ। फिर वो पूछता है, देखो जैसे इसको क्लिक किया फिर वो पूछ रहा है व्हाट डू दीज प्रोकैरियोटिक आरआरएनए और आरआरएनए आईजीएस सीक्वेंस कंटेन्स, इस सीक्वेंस के अंदर क्या इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, आपको पता है ना इस सीक्वेंस के अंदर कौन है, 16S RRNA। यस 16 आरआरएनए है आपके पास में। तो आप यहाँ आएंगे और कौन सा सिलेक्ट करूं, स्मॉल सब यूनिट ना सर? स्मॉल सब यूनिट आरआरएनए ओनली, स्मॉल सब Only। यूनिट आरआरएनए ओनली, 16S आरआरएनए ही है, 23S नहीं है उसके अंदर, तो इसको क्लिक करेंगे। सर तो ये वाले कौन से सीक्वेंसेस होते हैं सर, इंटरजेनिक जो बोलेंगे? हाँ फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपने 16S आरआरएनए के साथ में 23S आरआरएनए भी सीक्वेंस किया है उसका, तो वो कंबाइंड सीक्वेंस आता है मैडम, बड़ा वाला सीक्वेंस आता है। सर, पर वो प्रोकैरियोट्स में 23S मिलता है सर? हाँ मिलता है, नहीं हाँ, क्योंकि मैंने अभी कुछ प्रोकैरियोट सुना है। में हाँ, नहीं मिलेगा,
तो ये तो प्रोकैरियोट का ही चेन हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं सॉर्ट ऑफ। प्रोकैरियोट का ही है, पर वो बाय डिफॉल्ट लिंकेज रहेंगे उसमें, ठीक है। ये भी अच्छा, हाँ आता हाँ, है, किसी किसी में ये भी आता है, इसलिए ओके। ये इसका जुड़ा हुआ रहता है ना, 16s और अच्छा 23s का जुड़ा हुआ रहता है, तो कभी कभी लोग इसको काट देते हैं सीक्वेंस को और सिर्फ 23s सबमिट करते हैं, इसलिए वो वहां पे भी वो भी है। तो एक तो ये कंबाइन रहेगा, या फिर ये रहेगा, या फिर ये जनरली 16s RNA ही मिलेगा, ठीक है। तो तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए, हमने करेक्ट ठीक कर है सर। लिया, RRNA, प्रोकैरियोटिक RRNA और स्मॉल RRNA कंप्लीट हो गया। देन सबमिशन टाइटल, आप चाहो तो कोई टाइटल दे सकते हो, क्योंकि सबमिशन के पहले हमको पता रहना चाहिए कि हम क्या सबमिट कर रहे हैं। तो मैं बोलता हूं, मान के चलता हूं मेरे कंफर्मेशन के लिए कि ओशियन बैक्टीरिया है, और करेंगे कंटिन्यू। अगर कुछ भी एरर होता है तो आगे नहीं जाने देता है वो, ठीक है, वो यही रोक देगा आपको। फिर आएगा सबमिटर। सबमिटर यानी कौन, जो सीक्वेंस को सबमिट कर रहा है उसके बारे में वो इंफॉर्मेशन पूछ रहा है कि कौन सबमिट कर रहा है, ठीक है। तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। सबसे पहली बात है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ मेरा नाम, कंपनी का नाम, डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी रन देता हूँ, 71, सिटी का नाम प्रॉपर डालिए, नागपुर, महाराष्ट्र साइट है 440009, कंट्री इंडिया राइट है, सब बराबर हो गया। ईमेल आईडी, प्राइमरी ईमेल आईडी यानी करस्पॉन्डेंस जिस पे आएगा वो ये वाला ईमेल आईडी, आप चाहो तो सेकेंडरी ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, तो मैं दे देता हूँ, ठीक है। फिर वो देखिए जैसे ही डालते हैं यहाँ पे उसने एडिट कर दिया, एडिट में आप थोड़ा सा चेंजेस करिए, आपको जो नाम चाहिए प्रॉपरली डालिए। यहाँ पे गलती मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती हो गई तो आगे में गड़बड़ होता है। फैक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, फोन नंबर ऑप्शनल है, यहाँ पे हटा सकते हैं। जहां ये स्टार है वही चीजें रिक्वायर्ड है, अदरवाइज कोई चीजें रिक्वायर्ड नहीं, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। देन कंटिन्यू करिए। Then they will ask you what type of sequencing system you have used for getting this sequence information, ठीक है। आपके पास में इतने सारे हैं, सैंगर है, 4-5 है, हेलिकॉस है, इल्यूमिना है, टोरेंट है, यू सिलेक्ट वॉट एवर। हमने क्योंकि सैंगर से किया है तो हम सैंगर सिलेक्ट करेंगे। फिर ये पूछ रहा है अनअसेंबल्ड सीक्वेंस रीड है या असेंबल्ड सीक्वेंस रीड है, क्योंकि ये अनअसेंबल्ड है। अनअसेंबल्ड क्यों है, क्योंकि ये एक ही रीड है, उसमें कंटिन्यूअसली आ गया। सैंगर क्या करता है, सैंगर आपको 3000 न्यूक्लियोटाइड 4000 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसिंग एक साथ दे सकता है। हमने जो सीक्वेंस लिया है वो 1132 न्यूक्लियोटाइड का है, और वो अनअसेंबल्ड ही है, असेंबल्ड नहीं है, इसलिए उसको अनअसेंबल्ड कहेंगे। समझ रहे हैं किसी को कि नहीं समझा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि असेंबल्ड यानी अगर आप 4 सीक्वेंसेस 5 सीक्वेंसेस को एक के ऊपर रख के एक फाइनल सीक्वेंस अगर बना रहे हो ओवरलैपिंग, तो वो असेंबल्ड हो जाएगा, ठीक है। अभी ये तो सिंगल है, कंटिन्यूअस है ये, इसलिए अनअसेंबल्ड। फिर पूछ रहा है सीक्वेंसेस, सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा है, सीक्वेंस कहाँ है बताइए। पूछ रहा है रिलीज इमीडिएटली आफ्टर प्रोसेसिंग। अगर आपकी सब कुछ सही बैठ गया तो आपको कब चाहिए, कब आपको उसको रिलीज करना है, तो आप बोल रहे हो रिलीज इमीडिएटली फॉलोइंग द प्रोसेसिंग। अगर सब कुछ सही बैठता है तो जल्दी से जल्दी उसको प्रोसेस कर दीजिए, डेटाबेस में डाल दीजिए। पर अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पर्टिकुलर डेट को रिलीज करना है, तो आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 29 तारीख को ही मुझे डेट रिलीज करना है, उसी दिन वो प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। इसका फायदा ये अगले 6 महीने तक आपको डेट देता है, ठीक है। यानी आप सबमिट करके रख दोगे और जिस दिन आपने डेट दी है उसी दिन वो डेटाबेस में देखेगा, ठीक है। अगर आप बोलते हो नहीं रिलीज इमीडिएटली तो ऐसा हो जाएगा। ये समझ रहे हैं अभी आपको सबको, रिलीज इमीडिएटली। डिड यू चेक एंड रिमूव लो क्वालिटी chimeric sequences from your FASTA file prior to preparing this submission? Yes or no? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Did you check and remove low quality and chimeric sequence from your FASTA file prior to preparing this submission? वो बोलता है yes or no। नो आएगा ना सर।
नो आएगा यहाँ पे, ठीक है। पर काइमेरिक सीक्वेंस क्या होता है ये थोड़ा मैं आपको सबको समझा देता हूँ, सो दैट बिफोर गोइंग इनटू द सबमिशन हम उसमें कंफ्यूजन में ना रहे कि काइमेरिक सीक्वेंस क्या होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ चीजें। अब देखिए आपके पास में एक सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें मैंने ना कंटेमिनेशन डाल दिया है। कंटेमिनेशन समझ गया सबको? मैंने क्या किया, PBR 322, ठीक है। मैंने क्या किया, PBR 322 क्लोनिंग वेक्टर, ये पता है ना सबको, क्लोनिंग वेक्टर, इसका कंटेमिनेशन डाल दिया, सीक्वेंस कंटेमिनेशन। आप बोलोगे आपने इसका ही क्यों डाला, तो आपको पता है ना क्या होता है कि व्हेनेवर हम किसी जीनोम के सीक्वेंस को रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कर देते हैं, हमने पढ़ा था, तो हमारे पास में लाइब्रेरीज बनी थी, राइट। लाइब्रेरी कितनी बनी थी, कितनी लाइब्रेरीज बनी थी हमारे पास, याद होगा सबको। जीनोम को तोड़ा था तो कितनी लाइब्रेरीज बनाई थी हमने, भूल गए। जीनोम 1 एंड 2, लाइब्रेरी 1 और 2 बनाए थे ना। जीनोम सीक्वेंस में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस करके लाइब्रेरी 1 और लाइब्रेरी 2 बनाए थे, फिर उसमें से हमारे पास में फ्रैगमेंट्स आए थे, याद है आपको। वो फ्रैगमेंट्स को हमने वेक्टर में क्लोन किया था, आपको याद होगा तो, वेक्टर में क्लोन किया था। वेक्टर में क्लोन करने के बाद क्या होगा, आपका आपका सीक्वेंस प्लाज्मिड के सीक्वेंस के साथ में क्लोन हो जाएगा और वो सर्कुलराइज हो जाएगा, रिजल्टेंट वो एम्पलीफाई हो जाएगा। तो एम्पलीफाई वेक्टर भी होगा एंड आपका जीनोम का फ्रैगमेंट भी होगा, ठीक है। और जब हम उसको कट देते हैं ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट देते हैं ना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से जब उसको कट देते हैं तो होता क्या है, सम फ्रैगमेंट ऑफ वेक्टर प्लस जीनोम फ्रैगमेंट, ये सीक्वेंस्ड होते हैं। क्या होते हैं, कुछ फ्रैगमेंट जो होता है वेक्टर का और कुछ जो बचा हुआ फ्रैगमेंट है वो जीनोम का, आपके वो सीक्वेंस्ड होता है। यानी यहाँ पे कंटामिनेशन हो गया। कंटामिनेशन किसका है, वेक्टर प्लस का। वेक्टर प्लस, वेक्टर प्लस है ना वो छोटा सीक्वेंस जो वेक्टर का है एक्चुअली, और वो जीनोम के साथ क्या हो गया है, सीक्वेंस्ड, राइट। सो ये कंटामिनेशन हटाने के लिए, यानी ये वेक्टर प्लस का कंटामिनेशन हटाने के लिए हमको पहले उसको स्क्रीन करना पड़ता है, ठीक है। क्या करना पड़ता है, स्क्रीन करना पड़ता है। अब जब स्क्रीन करोगे तो कैसे स्क्रीन करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा, या सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा, सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि वेक्टर का सीक्वेंस कौन सा है और जीनोम का सीक्वेंस कौन सा है ना। कोई मुझे बता सकता है कि सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि मुझे ये हटाना है वेक्टर प्लस और सिर्फ जीनोम का सीक्वेंस बताना है, तो कैसे बताएगा। अगर आप सही में ट्रू साइंटिस्ट हो तो बता सकते हो। अभी आप छोटे हो इस फील्ड में, आई नो, बट स्टिल।
सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। कैसे मैं बताता हूं आपको। एक गोट फार्म है, ठीक है। कौन है? कोई आवाज जोर से बोलेगा, क्या है मेरे पास में? गोट फार्म। गोट फार्म है, और प्लस लॉयन है मेरे पास उस गोट में, ठीक है। क्या है? लॉयन है। तो फियर है कि नहीं गोट को? डर है कि नहीं है? लॉयन होगा तो क्या कर देगा? मार देगा, खा जाएगा। खा जाएगा उनको। तो लॉयन को डिटेक्ट कैसे करते? लॉयन को डिटेक्ट कैसे करते हैं? उसके चेहरे से ना, हाँ है ना। फेस से। फेस से, फर होगा, है ना, बड़ी पूंछ होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, गोट फार्म प्लस लॉयन। तो सारे गोट्स को, जितने भी गोट्स है, जितने भी एनिमल्स है वो फार्म में, ठीक है, उनको ना लॉयन के फेस से मैच कराएंगे। समझ रहे क्या? रिजल्टेंट क्या होगा? सारी गोट्स निकल जाएगी और बचेगा कौन? लायन। लायन। तो यहां भी वैसे ही करना है हमको, वेरी इजी। हम क्या करेंगे कि वेक्टर है ना, वेक्टर, वेक्टर कौन है? वेक्टर एक आर्टिफिशियल सीक्वेंस है। क्या है? आर्टिफिशियल सीक्वेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो ये चीजें, नहीं तो क्या होगा ना, यहाँ गड़बड़ होने वाला है। वेक्टर एक आर्टिफिशियल सीक्वेंस है, ठीक है। इसका क्या मीनिंग? यानी इसको किसने बनाया? मैनमेड है ना। अगर मैनमेड है तो सीक्वेंस क्या होंगे? सीक्वेंस नोन होंगे, है ना। वेक्टर है आर्टिफिशियल सीक्वेंस, जो मैनमेड सीक्वेंस नोन है। तो जितने भी वेक्टर हम यूज करेंगे क्लोनिंग में, उनके सबके सीक्वेंसेस हमको पता है। तो मैं आराम से मेरा वो सीक्वेंस ढूंढ सकता हूं ना जो वेक्टर का पार्ट है ना। मैच इन द फॉर्म ऑफ कंटामिनेशन इन नेचुरल सीक्वेंस। नहीं समझा? नहीं समझा? नो सर। नहीं समझा। जीनोम का सीक्वेंस नेचुरल है ना, यस सर। और वेक्टर का सीक्वेंस क्या है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल सीक्वेंस आर्टिफिशियल सीक्वेंस से मैच करेगा क्या कभी? नो। नो। इसलिए हम आराम से क्या ढूंढ पाएंगे, अगर नेचुरल सीक्वेंस में आर्टिफिशियल सीक्वेंस का कंटेमिनेशन है तो आराम से ढूंढ पाएंगे। उसको क्या करना पड़ेगा? होमोलॉजी यानी मैचिंग। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहां पे क्या करते हैं मैं आपको समझा देता हूं। वेक्टर का एक क्या बनाया है, क्या बनाया है? डाटाबेस। जितने भी वेक्टर हम यूज करते हैं क्लोनिंग में, एक्सप्रेशन वेक्टर में, उसका एक डेटाबेस है। और उस डेटाबेस को क्या लिंक कर दिया है? कौन सा सॉफ्टवेयर लिंक कर दिया है? लिखा है सामने, कौन सा? ब्लास्ट। हाँ, तो ये ब्लास्ट किसको कनेक्टेड है? वेक्टर के डेटाबेसेस को। यानी सिर्फ वेक्टर के सीक्वेंसेस के अंदर ही वो सीक्वेंस को ढूंढेगा। समझा क्या? तो मैंने मेरा सीक्वेंस उठा के दे दिया, देखो अब यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये सीक्वेंस यहाँ पे उठा के दे दिया। और आपने कौन सा किया? ब्लास्ट 10। ऑर्गेनिज्म लूंगा कि नहीं लूंगा? नहीं लेते हैं। यहां लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा बताओ? सर मैच नहीं करेंगे। मैच, मैच करेगा, पर आपको पता है बैसिलस सबटिलिस तो उतना ही दिखाएगा, पर हमको क्या ढूंढना है? कंटामिनेशन। तो पहले नॉर्मल ब्लास्ट करके देखते कि क्या होता है।
नॉर्मल ब्लास्ट करके देखते क्या होता है। कभी कभी सीक्वेंस सबमिट करने के लिए 7-8 घंटे लग जाते हैं। इतना आसान नहीं है ये चीज। चलो आ गया रिजल्ट। आ गया। कहां से कहां तक मैच बोल रहा है? 1132 तक मैच हुआ। उसके बाद और कुछ सीक्वेंस दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है। आपने टोटल लेंथ कितनी डाली? 1510 और कितने का मैच दिखा रहा है? 1132 यानी 1133 के बाद का सीक्वेंस इससे मैच, किसी से भी मैच, किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। नहीं हो रहा। नहीं कर रहा है। ये एक पहला नहीं हो कंफर्मेशन, रहा है। नहीं हो रहा है। हम्म। पर ये रियल नहीं है। इससे आप 100% श्योर नहीं है कि क्या हुआ उसके साथ में, राइट? क्योंकि जो 1132 है उसका तो कुछ पता ही नहीं चला उसके बाद वालों का क्या हुआ। तो ये कंफर्म करने के लिए हम ब्लास्ट में आएंगे, ओरिजिनल ब्लास्ट प्रोग्राम में, और नीचे में along with these 4 प्रोग्राम्स और एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं वेक्स स्क्रीन। दिख रहा है ये वेक्स स्क्रीन, वेक्टर कंटामिनेशन। इसको क्लिक करें। यहां पुट करेंगे उसको, ठीक है? यहां पुट करने के बाद में हम डालेंगे वेक्स स्क्रीन। तो कर क्या रहे थोड़ा देख लीजिए। वेक्स स्क्रीन इज अ सिस्टम दैट क्विकली फाइंड्स सेगमेंट्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस that may be of vector origin। वेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, PBR322, PSC101, इन सब के साथ में कंपेयर करेगा। इट हेल्प्स रिसर्चर टू आइडेंटिफाई एंड रिमूव एनी सेगमेंट ऑफ वेक्टर ओरिजिन बिफोर दे एनालाइज और सबमिट सीक्वेंस। उसने यही तो पूछा था, आपने वो एनालाइज किया है क्या करके, हमने ना बोला। पर यहां आप देखते कि सही में कंटामिनेशन है क्या, चेक करते हैं। रन वेक्स स्क्रीन, शो रिजल्ट इन न्यू विंडो क्लिक करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है? और व्यू रिपोर्ट। It takes some time. सर तो एक क्वेश्चन पूछूं मैं हाँ आपको? हाँ हाँ, पूछे। तो ये जो चिमेरा वाला था सर, तो वो हमारे लिए कर देगा वहां पे सबमिट करते समय, राइट? अगर हाँ हमने वहां नो लिखा तो, हाँ। या ये हमें करके ही डालना पड़ेगा सर? ये कैसा है कि हमने क्योंकि क्लोनिंग नहीं किया है, ठीक है? क्लोनिंग नहीं किया है ना हमने, तो हमारा डायरेक्ट सेंगर सीक्वेंसिंग ही कर लिया है। पर जब आप क्लोनिंग करते हैं ना तो बहुत कंटामिनेशन होते हैं। तो कभी कभी छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं ना, जैसे अभी देखिए 1132 तक तो हो गया है ना, 1132 तक प्रॉपरली उसने दिखा दिया। पर अगर उसमें 10 न्यूक्लियोटाइड का भी कंटामिनेशन होगा तो वो काइमेरा पकड़ नहीं पाएगा उसको। वो बोलेगा ओके इट इज अ पार्ट ऑफ द योर डीएनए। तो छोटा पार्ट भी डिलीटेरियस या फिर जीनोम को एरर दिखा सकता है। इसलिए हमेशा वेक्स स्क्रीन करना ही चाहिए अगर आप क्लोनिंग बेस्ड सीक्वेंसिंग कर रहे हो तो, क्लोनिंग वेक्टर्स।
ये चीज है इसके अंदर। सर एक और क्वेश्चन, अगर वो मैच भी नहीं हो रहा है, अगर वो नेचुरल भी नहीं है, वो एक कंटामिनेशन है, तो वो प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करेगा सर? वो तो कोई किसी चीज का सीक्वेंस तो है नहीं सर, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्रॉब्लम इट कैन क्रिएट, ये पूछ रही हूँ सर मैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिए, जैसे मान के चलिए कि आप एक जीनोम सीक्वेंस कर रहे हो, ठीक है, एक जीनोम सीक्वेंस कर रहे हो जिसके आपने फ्रैगमेंट्स बनाए थे, याद होगा आपको, हमने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, फिर टुकड़े करने के बाद में हमने उसको सीक्वेंस किया था, है ना, सीक्वेंस किया था अलग अलग मेथड से, जैसे सैंगर है या और कोई मेथड से सीक्वेंस कर रहे हैं। तो हम तो ये चाह रहे हैं ना कि जीनोम का सीक्वेंस ही एक दूसरे से मैच हो, पर इसमें हो क्या रहा है कि आपने एक क्लोनिंग वेक्टर का सीक्वेंस, क्लोनिंग वेक्टर का सीक्वेंस भी जीनोम का पार्ट कंसीडर कर लिया। अब आपको समझा मैडम, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर का भी सीक्वेंस क्या समझ रहे हैं आप, हाँ सर, सही जीनोम का बात। पार्ट है। तो आप क्या बोल रहे हो, मान के चलता हूं जो क्लोनिंग वेक्टर है उसके अंदर एक जीन था जो है एएमपी रेजिस्टेंस, यस, एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है। हाँ तो और आप एक बैक्टीरिया का जीनोम सीक्वेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो जी सर, आपने क्या कर दिया, जीनोम में ये रिपोर्ट कर दिया कि इसके अंदर कौन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। पर है ही नहीं, वो तो किसका था, क्लोनिंग वेक्टर का था, है ना। हाँ, तो आप बड़े अच्छे से उसमें बताओगे दिस बैक्टीरियम इज हैविंग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, पर एक्चुअली उसमें है ही नहीं। नहीं वो तो आर्टिफिशियली पुट किया हाँ, रहेगा। इसलिए ये रॉन्ग इन्फो हाँ, टू द यूजर हो जाएगा, है ना। आप जो yes, यूजर होगा, आपका सीक्वेंस का जो यूजर होगा उसके लिए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, जैसे अभी आप बोलोगे होमोसैपियन का जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा हूं मैं और उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन दिखा रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, अरे ये तो यूरिका हो गया, हमारे बॉडी के अंदर भी हमारे जीनोम में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, पर ऐसा नहीं है, वो फॉरेन जीन था। इसको बहुत टाइम लग रहा है, डोंट नो क्यों। फिर से एक बार करते हैं। इतना टाइम नहीं लगाता है, फटाफट हो जाता है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखना जरूरी है एज अ बायोलॉजिस्ट। कमिंग, आई डोंट नो। ठीक है, तब तक आने दो, मैं आगे, हम आगे बढ़ जाते हैं इधर, ठीक है, ये समझ गए आपको। तो यहाँ मैं नो बोलता हूं, तो ये यहाँ पे नो बोलने के बाद में आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर प्योर कल्चर है या अनकल्चर्ड बैक्टीरियल सैंपल है, ठीक है, ये आपको पूछेगा वो प्योर कल्चर है या नहीं है। Pure culture means if you have isolated it and you have maintained it on a media and then you have isolated the DNA out of it, then it is a pure culture. Okay. Or it may be an uncultured or bulk DNA. If you have isolated a soil और अगर आपने soil से कुछ DNA निकाला है तो ये हो जाएगा uncultured bulk environmental DNA sample. तो मैं बोलूंगा प्योर है। नेक्स्ट वो पूछेगा आपको फाइल अपलोड करने के लिए, तो आपको ये फाइल अपलोड करनी पड़ेगी। तो जो ये सीक्वेंस होगा, ये सीक्वेंस को आपको एक फाइल में सेव कर लेना, फाइल, कॉपी दिस एंड सेव इट समवेयर। तो मैं उसको सेव कर देता हूँ। इसको मैं एक जगह सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। सबमिट, सेव। ओके, तो सबसे पहले इसकी सेव होनी चाहिए आपके पास में फाइल।
तो यहाँ से आप उसको चूज करेंगे, अपलोड करेंगे आपकी फाइल को। अपलोड करी हुई फाइल हमेशा फास्टा फॉर्मेट में ही रहनी चाहिए। अगर वो फास्टा फॉर्मेट में नहीं है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम सबको आता है फास्टा फॉर्मेट बनाना, ग्रेटर देन साइन फॉलोड बाय इंफॉर्मेशन। तो देखिए अब ये सीक्वेंस यहाँ पे अपलोड हो चुका है। कंटिन्यू कंटिन्यू हो जाने के बाद चेक कर रहा है, देखिए वो एक्चुअली वो ये कर रहा है, बैक स्क्रीन कर रहा है। प्रोसेस हो गया, फिर वो डेट आपने दे दिया है ऑलरेडी। अब आप कंटिन्यू करिए। अब वो आगे चला गया है, देखिए फिफ्थ मोड पे गया। अब वो पूछ रहा है कि ये ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जिससे ये बिलोंग कर रहा है, ये सीक्वेंस किससे बिलोंग कर रहा है। तो हमको पता है कौन सा ऑर्गेनिज्म का नाम है, नाम बताइए। हाँ राइट, बैसिलस सबटाइलिस। स्पेलिंग बराबर डालिए, ठीक है, वो आपको हेल्प भी करता है। अगर कोई सब स्पीसीज है या ग्रुप है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका एनसीबीआई का ब्लास्ट का रिजल्ट क्या था, ठीक है। तो मैं ये पुट कर रहा हूँ। आपको अगर कोई स्ट्रेन देनी है, ये स्ट्रेन जरूरी नहीं है कि ब्लास्ट से मैच हुई वाली स्ट्रेन डालनी है, मैं चाहूँ तो मेरे नाम से भी डाल सकता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं पुट कर सकता हूँ, ये मेरे ऊपर है। अब ये है एडिशनल सोर्सेस। आइसोलेशन सोर्स, आइसोलेशन सोर्स यानी देखिए आप कहां से उसको आइसोलेट की, जैसे रिवर बेड है, सॉइल है, तो मैं मान के चलता हूं, इसको लिखता हूं इंसेक्ट स्किन, ठीक है, ऐसा कुछ लिखता हूं। इंसेक्ट के स्किन से निकाला मैंने, या उसके इंसेक्ट फीकल मैटर से निकाला, ऐसा कुछ लिख रहा हूं, ठीक है। फिर होस्ट, होस्ट कौन है, तो होस्ट में आपको ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना पड़ता है। होस्ट है ना कौन, अगर ये बैक्टीरिया मैंने किसी इंसान के सलाइवा से निकाला हुआ है, या किसी के स्किन से निकाला हुआ है, या प्लांट के फ्रूट से निकाला हुआ है, तो आपको वो प्लांट का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। या किसी बर्ड से निकाला तो बर्ड का नाम डालना पड़ेगा, उसको कहा जाता है होस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल होमोसैपियंस, तो मैंने होमोसैपियंस से अगर निकाला है तो मैं लिखूंगा यहाँ पे होमोसैपियंस। कंट्री, आप चाहो तो कंट्री ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड फील्ड्स ऑप्शन से दिख रहे हैं आपको ये सारे, तो ये ऐड फील्ड ऑप्शन है, कंट्री है, कलेक्शन डेट है, तो चलो कलेक्शन डेट में ऐड कर देता हूँ, देखिए और ऐड हो गया। तो कुछ भी लिख सकता हूँ मैं, जैसे इसमें यहाँ पे ऐसा लिखा है, आप ये लिख सकते हैं। फिर आप और ऐड फील्ड्स में जाएंगे, कंट्री, इंडिया, फिर और ऐड फील्ड्स में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, देखिए इतने सारे। आइडेंटिफाइड बाय, आप चाहो तो मेरा नाम लिख सकते हैं, किसी और का नाम लिख सकते हैं, इस तरह से गो बाय। आई थिंक इतना ओके है, तो फिर मैं कंटिन्यू। फिफ्थ कंप्लीट हो गया, अब सिक्स्थ कंडीशन पे आ गए। सीक्वेंस ऑथर फ्रॉम योर रिसेंट सबमिशन। सीक्वेंस ऑथर यानी आप ऑथर के नाम डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑथर का नाम है आप अपना डाल दीजिए। कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और ऐड करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे ऐड ऑप्शन है, ठीक है। ऐड करेंगे तो और ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ऐड करते जाएंगे, वो ऐड होते जाएगा। रेफरेंस ऑप्शनल है, रेफरेंस फॉर योर रिसेंट सबमिशन,
अनपब्लिश लिखेंगे तो भी यहाँ पे कुछ ना कुछ डालना ही पड़ता है, ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड है। रेफरेंस का ऑथर नेम बताइए तो मैं बोलूंगा सेम एज ऑथर, अगर कोई अलग है तो आप अलग दे सकते हैं। कंटिन्यू। सो अब आपके पास रेफरेंसेस भी आ गए, रिव्यू एंड सबमिट सब कुछ हो गया। आपका आउटपुट कुछ इस तरह दिखेगा, दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा दिखेगा। बैसिलस सबटिलिस डीजी गोरे सैमसंग एलएम नाम है, ये है डायरेक्ट सबमिशन है, सबमिटेड बाय दिस। ये देखो कितना अच्छे से उन्होंने सेट कर दिया, दिख रहा है। आपने बोला ना बैसिलस सबटिलिस है, जीनोमिक डीएनए है, स्ट्रेन देखिए डिलीप 123 आ गई, इंसेक्ट फीकल मैटर, होमोसैपियन, टैक्सोनॉमिकल आईडी 41432, ये तो हमने पुट नहीं की थी पर ये यहाँ से डायरेक्टली आ जाती है। बैसिलस सबटिलिस का टैक्सोनॉमिकल आईडी है 14323, कंट्री हमने पुट फॉरवर्ड की थी, कलेक्शन डेट भी बता दिया था, आरआरएनए सीक्वेंस भी देखिए वन मोर देन वन, एंड ये इसके भी मीनिंग है, ये जो एरोज है इसके भी मीनिंग है। इसके एरो के मीनिंग ये है कि ये सीक्वेंस यहां खत्म नहीं हुआ, यानी यहां से शुरू नहीं हुआ और यहां खत्म भी नहीं हुआ, और भी ज्यादा हो सकता है, यानी ये पार्शियल सीक्वेंसिंग है। क्या है? पार्शियल। इसलिए देखिए यहाँ पे लिख के आएगा जब आपका सबमिट होगा ना, तो जब रिपोर्ट आएगी तो लिख के आएगा पार्शियल, क्योंकि ये जो है ना ये एरो इंडिकेट करते हैं कि आपका सीक्वेंस पार्शियल है। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? 16S राइबोसोमल आरएनए बेस यूनिट्स, और ये देखिए सीक्वेंस ऑटोमेटिक आ गया, ठीक है। बस अब मुझे क्या करना है, ये बटन दबा दीजिए, जैसे ये बटन दबा दूंगा ये सीक्वेंस मेरे नाम से हो जाएगा, पर मैं अभी सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि ये फेक है, ठीक है। बस आपको ये सबमिट करना है, आपके मेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका सीक्वेंस सबमिट हो गया है, और विद इन 1 डे, और आई थिंक 3 से 4 घंटे के अंदर भी आपको रिपोर्ट आ सकती है एनसीबीआई से सबमिट करते हुए, ठीक है। ये है प्रोसीजर किसकी? 16S आरआरएनए की। अब हमको किसकी देखनी है? कौन सा रह गया था? mRNA। mRNA. एमआरएनए। एमआरएनए इतना आसान नहीं है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये देखिए वो आ गया वैक्सीन का रिजल्ट आ गया, दिखा? यहां देखिए क्या लिखा है, 1 से, ये पूरा व्हाइट लाइन दिख रहा है ना, 1 से 1132 तक व्हाइट लाइन है। इसका ये मतलब है कि ये सीक्वेंस कभी भी वेक्टर में अवेलेबल नहीं होता, और 1132 के बाद में 1510 तक उसने क्या बोला है? स्ट्रॉन्ग मैच है किसके साथ? वेक्टर के साथ। 1132 1510 से 1132। अभी मालूम है क्या, ये दिखता उतना आसान नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि 1133 से 1510 सीक्वेंस निकालना है ना, आपके पास ये सीक्वेंस है ना, निकालना है, तो आप क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे? क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करेंगे? बता पाएंगे? कैसे हटाएंगे 1133 से 1150? सर बायो एडिट का यूज करके। हाँ, बायोडिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बट उसमें भी एक ट्विस्ट है। कैसे हटाओगे बताओ? सर बायो एडिट में एडिट करना पड़ेगा सीक्वेंस को, जो नंबर दिया है वहां से वहां तक डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, तो डायरेक्टली सिलेक्ट करके ही एडिट करना पड़ेगा, है ना। अगर यस आप सर। एक दो भी इधर उधर किए तो वो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। कंसिडर अ सिचुएशन, ये तो ठीक है एंड में है, कहां पे? एंड में। स्टार्ट में होता तो क्या करते, और थोड़ा बीच में होता तो क्या करते हैं? मान के चलो बीच में भी एक सीक्वेंस का करेक्शन है, तो
चलो दोनों सिचुएशन मत कंसीडर करो, सेंटर में कंटेमिनेशन है तो कैसे उड़ाते, आगे से उड़ाते या पीछे से उड़ाते हुए आते? कभी भी याद रखो बैक साइड से उड़ाते हुए आना, नहीं तो क्या होगा, फ्रंट से उड़ाओगे ना तो सीक्वेंस नंबर क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा सर। डिस्टर्ब हो जाएगा ना। समझ रहे हैं ना सबको? अगर आपने समझ लो आपको 333 पोजीशन से कट करना है और जाना है, फिर आपको 700 नंबर का कट करना है, तो आप 333 को कट मत करिए, पहले पहले 700 वाले को कट करिए और फिर इधर आइए। अगर आपने ऐसा किया तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना। चलो अभी अगला वाला पार्ट देखना है। सबमिट में आएंगे, यहां आएंगे सबमिट में। अब वो पूछ रहा है आपको फिर से स्टार्ट सार्स कोविड कोविड करना है क्या आपको, कोविड वाले का नहीं। आरआरएनए सबमिशन करना है, नहीं। हमारा जीन कौन सा एमआरएनए, कौन सा एमआरएनए, अल्डोलेज है ना, तो ये नहीं चलेगा। मेटाजोन भी नहीं चलेगा, इन्फ्लुएंजा नो। सो हमको यूज करना पड़ेगा बैंकिट ऑप्शन, है ना, बैंकिट ऑप्शन, क्लिक ऑन बैंकिट। देखिए यहाँ पे आपके वजह से पूरा नाम भरने पड़ेंगे जैसे अभी भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यू, फिर फर्स्ट नेम पूछेगा, सफिक्स की जरूरत नहीं। अनपब्लिश्ड, सेम एज ऑथर सीक्वेंस, कंटिन्यू करेंगे। ये सब सेम है जैसा वहां पे था, है ना। सैंगर्स, अनअसेंबल्ड, कंटिन्यू। इमीडिएटली आफ्टर यहां से ट्विस्ट शुरू हो जाता है, दिख रहा है। मॉलिक्यूलर टाइप पूछ रहा है, वो कौन सा है, तो मैं बोलूंगा कौन सा है हमारे पास, एमआरएनए। mRNA, एमआरएनए या सीडीएनए, राइट। इसको क्लिक करें। टोपोलॉजी लीनियर है या सर्कुलर है, एमआरएनए की टोपोलॉजी कैसी होती है, एमआरएनए सर्कुलर होता है कि लीनियर होता है? लीनियर। हाँ, लीनियर। आर यू सबमिटिंग अ कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ एन ऑर्गेनेली जीनोम, वायरस, वायरल जीनोम, सेगमेंट, प्लाज्मिड और क्लोनिंग वेक्टर, यस और नो? कंप्लीट सीक्वेंस है क्या किसी का, खासकर जीनोम का, वायरस का, वायरल सेगमेंट का नहीं है, इसलिए नो ही रखना, ठीक है। सीक्वेंस डेटा फॉर्मेट हमेशा फास्टा फॉर्मेट में रखना है, ओके। पेस्ट सीक्वेंस हियर, ठीक है। हमारे पास सीक्वेंस था, बैठ जाते हैं। ये है ना सीक्वेंस हमारा, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ सबमिट। फास्टा फॉर्मेट चाहिए हमको, हमेशा याद रखना है, ग्रेटर देन साइन, सीक्वेंस 1, इंटर, पेस्ट, ठीक है। कर दिया पेस्ट, करेक्ट है, कोई डाउट? कंटिन्यू। कहाँ रुक गया? यू हैव chosen to submit a single sequence, बैंक इट allowed to submit multiple sequences, ठीक है ना। फिर भी इसको कंटिन्यू करो, समझा क्या? वो आपको एक से ज्यादा सीक्वेंस सबमिट करने के लिए फिर भी वहां रोकेगा वो एक बार, तो आपको रुकने की जरूरत नहीं, फिर से कंटिन्यू करना। ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है, कौन है ऑर्गेनिज्म, बराबर है, होमो सैपियंस, कंटिन्यू। यहां तक बहुत आसान है, अगली डगर मुश्किल है। सीक्वेंस 1, होमो सैपियन, यस, कंटिन्यू। ओरिजिनल है या थर्ड पार्टी है, अभी हमारे पास कौन है,
थर्ड पार्टी। हाँ थर्ड पार्टी है, तो इसलिए थर्ड पार्टी सिलेक्ट करते हैं। अब थर्ड पार्टी बोलेंगे तो फिर उसके पूरे एविडेंसेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा अभी, ओरिजिनल ही है, सबमिट नहीं करने वाले क्योंकि हम कंटिन्यू। हाँ, अब मुझे बताइए सोर्स कहां से निकाला है, क्या लिखूं? यहाँ क्या लिखा है? सर क्रोमोसोम से निकाला था 16। तो क्रोमोसोम क्या है, ऑर्गेनिली है क्या? कोई यूज करे इसमें का कि नहीं करना है? यहाँ लिखा है देखो, एप्लीकेबल है। इफ अप्लीकेबल, है ना। आपने कोई भी ऑर्गेनिली से इस एमआरएनए को निकाला है क्या, सोर्स उसका, यानी उसका जीन उस ऑर्गेनिली का है क्या? नहीं है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का है ना क्लोरोप्लास्ट का है, तो न्यूक्लियस का है, इसलिए उसको कोई देने की जरूरत यहाँ नहीं है। चूज द सोर्स मॉडिफायर एंड इंटर द वैल्यूज हियर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं ऐड किया तो भी चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फीचर्स, अब यहाँ पे फीचर्स डालने हैं हमको, ठीक है। यहाँ पे एक है ऐड फीचर्स बाय अपलोडिंग 5 कॉलम फीचर टेबल फाइल, एक एक्सेल शीट यहाँ पे डाउनलोड हो जाती है अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो, ठीक है। पर आपको ये वाली यूज करनी, ऐड फीचर बाय कंप्लीटिंग इनपुट फॉर्म्स, ठीक है। तो जैसे ये लिखेंगे, ये देखो यहाँ पे पता पूछता है फिर आपका सीक्वेंस किस टाइप का है, कोडिंग रीजन है, जीन है या एमआरएनए है, हाँ कि आरआरएनए है या रिपीट सीक्वेंस है या रेगुलेटरी सीक्वेंसेस है या कुछ और है। क्या है हमारा सीक्वेंस? कोडिंग रीजन। कोडिंग सीक्वेंस, राइट, इसको ले लेंगे। फिर वो पूछेगा प्रोवाइडिंग इंटरवल्स, प्रोवाइडिंग प्रोटीन सीक्वेंस डेटा, क्या दे रहे हो आप? हमने तभी क्या ढूंढा? प्रोटीन। हाँ प्रोटीन ढूंढा ना, इसलिए प्रोवाइडिंग प्रोटीन सीक्वेंस डेटा। कंटिन्यू। यू आर नॉट प्रोवाइडेड फीचर एनोटेशन फॉर सबमिटिंग, है ना। एक मिनट का तो भी यहाँ ऐड करना पड़ेगा, ये अपलोड करना ही पड़ता है, ये अपलोड नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होना ही है, ठीक है। तो इसको ये अपलोड हमको करना ही पड़ेगा। तो फीचर टेबल हमको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, तो फीचर टेबल कहाँ पे है? ओके, इसको यहाँ से फीचर टेबल डाउनलोड करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से नहीं दे रहा वो। एक्चुअली डाउनलोड होना चाहिए था, यहाँ पे हो नहीं रहा है। वी ट्राई ऐड फीचर्स बाय अपलोडिंग कॉलम फीचर्स टेबल, अपलोड फीचर्स टेबल, अपलोडिंग मल्टीपल फीचर्स एंड दिस सीक्वेंस आईडीज चाहिए रहेगा उसको। एक्चुअली एक्सेल शीट डाउनलोड होती है, ठीक है, वो हमको यहाँ पे चाहिए, वो यहाँ अपलोड नहीं हो रही है। तो एक काम करते, अभी का उसको यहाँ पे खोलते हैं, बैक जाते हैं, ठीक है, और सबमिट कर देते हैं।
सबमिशन के बाद क्या होगा ना, यहाँ एक ऑप्शन आता है, दिख रहा है, इफ यू हैव एडिशनल और करेक्टेड सोर्ट मॉडिफायर और फीचर फाइल्स और अदर प्लेन टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन चेक हियर, इसको क्लिक करो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो डाल सकते हैं अपलोड एनी एडिशनल और करेक्टेड सोर्ट मॉडिफायर फीचर और प्रोटीन पास्ता फाइल्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में ब्लास्ट का डेटा था, ये था ना, कौन सा लेना है हमको, नहीं ये नहीं, ये नहीं है, यही था क्या, 1630, हाँ बराबर है ना, नहीं 310 से था ना, 310 से ब्लास्ट टेक्स्ट चाहिए था हमको, ये वाला है राइट। 310 से कौन सा था, 1401 तक, पॉइंट समझ रहे हैं, नहीं समझा, ये लेना है ना हमको। तो इसको राइट क्लिक करके लिंक इन न्यू टैब, इसका कहां से सीक्वेंस लेना है, 1 से 364 तक लेना है हमको। यहां आएंगे कस्टमाइज व्यू, कहां से लेंगे, 1 से 364 अपडेट व्यू, फिर उसका फास्टा आ गया, y तक एंड है, यस इसको कॉपी करेंगे, इसको यहां से कॉपी करेंगे और ब्लैंकेट में आएंगे, पेस्ट कर देंगे, इसको थोड़ा एडिट कर देंगे क्योंकि ये ठीक है, हो गया, ये हो गया आपका प्रोटीन सीक्वेंस। इसके अलावा और क्या चीजें हैं, और कोई चीज है, इंफॉर्मेशन है, नहीं है, बाकी तो कुछ नहीं, बस मुझे क्या करना है, फिनिश सबमिट। नीचे में क्या होगा, ये सीक्वेंस के साथ साथ में ये भी आ जाएगा, ये अभी हमने यहाँ पे अपलोड नहीं किया ना इसलिए, अदरवाइज ये भी यहाँ पे नीचे में आ जाता। तो आपकी ये पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल इस तरह सबमिट होने वाली है, समझ रहे हैं आपको, कर पाएंगे सब लोग, करके देखना, और कहाँ गड़बड़ होती है वो एक बार करके देखना, ठीक है। एनी डाउट, इसमें कोई डाउट है, सर जो लोग वेक्टर का सबमिट करते हैं हाँ तो उनका कैसे होता होगा, वेक्टर का सबमिट करते हुए वेक्टर डिफाइन करते हैं ना उसको, कि वो आर्टिफिशियल सीक्वेंस है करके, समझे क्या। सर सबमिशन में 3 ऑप्शन है, जीनोम में, हाँ mRNA और RNA, तो उसमें से कौन सा सिलेक्ट करते होंगे, उसमें भी वो कोडिंग सीक्वेंस है या नहीं है वो देखना पड़ता है, उसमें आर्टिफिशियल सीक्वेंस भी सबमिट कर सकते हैं, सेकंड वाला था ना बीच वाला, यस सर, बीच वाले में भी आप बता सकते हैं कि आपके पास आर्टिफिशियल सीक्वेंस है क्या, क्योंकि वेक्टर भी तो कोड करता है ना, नहीं समझा आपको, यस सर, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, वो जीन है पर वो प्रोटीन तो देता है ना, यस सर, उसको तो बताना ही पड़ेगा कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, फिर वो क्या कोड कर रहा है सब बताना पड़ेगा उसको, इस तरह से उसको भी वो एक्सेप्ट करता है। ओके सर, हाँ प्लाज्मिड सीक्वेंस उसने बोला है ना वहां पे, तो वो एक्सेप्ट कर ले। और कुछ क्वेश्चन है, I think there are no questions, so we should stop here. We'll meet tomorrow. ठीक है, इसका प्रैक्टिस करिएगा बस जरूर। थैंक यू। ओके सर।